Am I audible now? Okay. Just okay. Yes. Okay. So it's fine now. Let me start this again. So what I told that we did this thing earlier. If there is a magnetic field B here and a charge placed in this magnetic field which is moving in this direction along x-axis with a speed v, then a force acts along this. We did this in the last class. Now, what if there is an extended magnetic field and number of charged particles are there which are moving in this direction? So what will happen? There will be forces acting on the charged particles in this direction. Okay. Now, think of this. If I bring a conductor and these charged particles are the particles inside this conductor. So these charged particles will push this conductor in this upward direction. So the whole conductor will move in this direction. That means there will be a force in a conductor, that is current carrying conductor, because flow of these charges is nothing but current if we consider these charges to be positive charges. So if current flows through a conductor I in this direction, and if the conductor is placed in a magnetic field B in this direction, then there would be a force acting on the conductor in this direction. So there would be again three things involved. One, there has to be a length of the conductor. This conductor has a length, say L. And we know that length is a vector quantity. How? The direction of current flow, if it is assumed to be in this direction, is the direction of length vector. So if a conductor of length L is placed in a magnetic field B, second point, first point length, second point B, and if current flows through it, I, third point, then there is a force acting on this conductor as a whole given by a formula, that is this one. The force acting on this conductor would be this much. I, that is a scalar quantity, L cross B. मैं बोला था last class में B for बाद में. That means magnetic field will appear at the last. So this is the formula of force acting on this conductor of length L passing a current I given by L cross B. Now there are two things. The formula for this force is okay. Let us study a little bit this formula. If we go with only the value of this force F, then how much would this force be? Only the value. P I L, आगे पीछे लिखो कोई बात नहीं, वैल्यू लिख रहे हैं, into sin theta, because there is a cross product. So BIL sin theta is the force. Now what if, हम लोगों का सबसे easy idea ये होता है कि if this theta is 90 degree, then the force is how much? The force becomes maximum. If this theta is 90 degree, how much? Sin 91. So F equals to BIL. मजाक से ऐसे बोल सकते हैं, बिल आराम से बोल सकते हैं. So the force acting on the conductor is bill if the conductor is placed at an angle of 90 degree. अब ये picture देख के बोल सकते हो कि whether or not this conductor is placed at an angle of 90 degree with the magnetic field. जवाब भेजो. ऐसा हो रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर 90 डिग्री में है कि पैरेलल है, कैसे रखा हुआ है? हाउ द कंडक्टर इज प्लेस्ड. ओके, इसका जवाब भेजो. यस, ओके, राइट आंसर. सो दिस इज परपेंडिकुलर, so the force acting would be maximum. There is another thing. What if theta equals to 0 degree or मजेदार? Why? Because if theta equals to 0 degree, sin 0 degree is 0, so force acting on the wire is 0. So इससे हम लोग क्या सीखे? Let us go to the next page. इससे हम लोग ये सीखे कि suppose एक magnetic field cross ना लेकर इधर ले लें, like this, and if we place a conductor along the magnetic field जिससे I current जा रही है,
then what will happen? The direction of I determines the direction of the length vector. This is the length vector L. मैं बोला था एंगल हमेशा होता है बिटवीन टू वेक्टर्स, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जिधर है लेंथ वेक्टर भी उधर ही है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो कैन वी से दैट एंगल हियर इज 0 डिग्री, सो देयर विल बी नो फोर्स ऑन द कंडक्टर, नो फोर्स. व्हाई? बिकॉज फोर्स इज गिवन बाय, हम लोग अभी देखे हैं, BIL, दैट इज बीन sin theta, because there was a cross product. So if theta is 0 degree, you can well understand that the force is 0. So if a conductor is placed along the magnetic field, there will be no force. Similarly, अगर magnetic field उधर ही है, magnetic field मान लो उधर ही है in the same direction, but ऐसे, but the wire is placed in this way, ऐसे, इससे करंट नीचे आ रही है, ऊपर जा रहा है. Anyway, the length vector would be in the direction of the current. This is the length vector L. This is the length vector L. जिधर करंट जा रहा है उधर length vector L. Magnetic field B. So easily understandable that theta in this case is 90 degree. So maximum force will act on this conductor. And what would be that maximum force? BIL. Sin theta is 1. This much of force will act. So these are the two cases. Remember this. अब बात आती है, ओके फॉर्मूला सीख गए, वैल्यू सीख गए कि हाउ मच फोर्स विल बी देयर अगर परपेंडिकुलर मैक्सिमम, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम, दैट इज नो फोर्स, एंड इफ इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, लाइक इधर मैग्नेटिक फील्ड है B and the wire is placed like this, ना पैरेलल ना ही परपेंडिकुलर. Suppose a current passes through it R. So the length vector would be along this vector L, along the direction of current and parallel to the conductor. That is the length vector. This angle अगर theta हो गया, we have already written this formula here. Then this is the force BIL sin theta. That much would be the force. Okay. Now let us move on to the next part. And the next part is, what is the next part? Suppose if there is a wire placed in a magnetic field like this. अच्छा magnetic field कैसे बनाते कैसे? Magnetic field ऐसे बनाते. Suppose here is an N pole, here is an S pole. If there is a wire like this, which is passing current say in upward direction R. So the length vector would be along this direction, in the direction of current vector. Okay. Now, from N pole to S pole, there exists magnetic field intensity P. What are we going to learn now? We are going to learn the direction of this force. This force F, which is given by BIL sin theta, इसका डायरेक्शन किधर हो? Direction. There are two ways to find direction. One is cross product. Why? Because in this formula we saw that there is a cross product, L cross B, B for बाद में. That means B appears last. So L vector cross B vector. Applying that, you can find the direction. Or there is another way, and I think this will be more beneficial for you if you can understand this. That is Fleming's left hand rule. Now comes Fleming's left hand rule. मैं एक बात बोलूं, simple idea है. In this whole chapter, always we will apply Fleming's left hand rule. And in the next chapter, that is electromagnetic induction, we will be applying Fleming's right hand rule. हो गया easy. यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में, सब में क्या करेंगे? Fleming's left hand rule. Force on a wire, current carrying conductor. सोचना नहीं है कि लेफ्ट ना राइट. ये चैप्टर में लेफ्ट ही होगा हमेशा, whatever be the sum. Or you can cross verify that or understand that if you clear with vector cross product.
सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके लिए क्या अंडरस्टैंडिंग, कुछ नहीं, सिंपल याद रखो एफबीआई। ये एफबीआई क्या है भाई? ये तो एक खुफिया एजेंसी है यूएसए का। नहीं, ऐसा है, सपोज दिस फिंगर, थ्री फिंगर्स में एफ थंब हो गया, बी पॉइंटिंग फिंगर हो गया, मिडिल फिंगर आई हो गया, एफ बी आई। याद रखना एफ बी आई। ये एफ बी आई में प्लेस दिस थ्री फिंगर्स परपेंडिकुलर। यू हैव डन दिस इन योर क्लास 10, मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं। फर्स्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए, तीनों परपेंडिकुलर म्यूचुअली होना चाहिए। इफ दे आर नॉट परपेंडिकुलर, अगर मान लो ये दोनों एक साथ आ गया कि चल एक साथ चलते हैं, तो बस ये फोर्स नहीं होगा। ये दोनों में से ये दोनों एक साथ आ गया, फोर्स नहीं होगा। सो ऑल द थ्री मस्ट बी इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तब जाके इसको अप्लाई कर पाएंगे। सो फर्स्ट थिंग इज दैट ये पहले अप्लाई करना कौन? ये। Why? Because this is the direction of B. याद है, F थंब हो गया, B पॉइंटिंग फिंगर, I, F B I। B मींस मैग्नेटिक फील्ड। चलो प्लेस कर ली इसको मैग्नेटिक फील्ड, क्या लाओ? ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, हो गया B। देन करंट ये मिडिल फिंगर से प्लेस करेंगे। अगर करंट नीचे जा रहा है तो मिडिल फिंगर नीचे, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर। पर कीपिंग द बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी ये फिंगर ये बी सेम डायरेक्शन में रखना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट अप तो ये अप हो गया, करंट डाउन तो डाउन हो गया। तो यहां पे कैसे जा रहा है? करंट इज अप, सो दिस इज बी, दिस इज आई। व्हाट शुड बी एफ? दैट मींस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर। थंब को प्लेस करो, अब बीइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पहले प्लेस कर लो तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नाउ प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड, करंट थंब इनवर्ड हो रहा है, thumb inward, that means the force on this wire inward draw कैसे करूंगा? आसान तरीका है। I told you anything, any quantity that is acting inward can be symbolized by this cross symbol। अब क्रॉस लिखने का मतलब ही ये नहीं है कि it is a magnetic field। Cross can be anything that is acting perpendicular to the plane and inward। बट उसका साइड में तुमको लिखना है कि कौन सा क्वांटिटी तुम क्रॉस सिंबल से दिखाना चाहते हो। तो वी वांट टू शो फोर्स एफ अलोंग दिस डायरेक्शन, साइड में फोर्स लिख दिया। कितना आसान तरीका है देखो। सो फिर से बता रहा हूं, करंट मूविंग अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, फोर्स किधर होगा? फ्लेमिंग्स लगा दिया लेफ्ट हैंड रूल, प्लेसिंग दिस थ्री फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फर्स्ट पॉइंट करेंगे किसको? फर्स्ट पॉइंट करेंगे पॉइंटिंग फिंगर को, ले लिए बी, करंट अप, थंब इनवर्ड। इनवर्ड कैसे दिखाएंगे? इनवर्ड दिखाएंगे बाय क्रॉस सिंबल एंड राइटिंग बाय द साइड ऑफ दैट क्रॉस सिंबल एफ। दैट मींस फोर्स विल एक्ट ऑन दिस वायर ऐसे। प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यू आर टेकिंग एन पोल एंड एस पोल, यू आर प्लेसिंग अ रॉड और वायर, current carrying wire, so if you apply the magnetic field, then the wire will move like this. It will, the wire will move like this, inward force है, move like this। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कंटिन्यू रखेंगे एन पोल टू एस पोल, तो वायर कंटिन्यू मूव करता जाएगा ऐसे। इट इज पॉसिबल, और ये होता है और ये हो रहा है, अभी के अभी हो रहा है। इफ यू हैव स्विच्ड ऑन द फैन। सो ये जो आइडिया सीखे हम लोग, विथ दिस आइडिया फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर, F इक्वल्स टू बिल, इसका डायरेक्शन कैसे सीखेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और आइडिया क्या था? FBI याद रखना। Now with this idea, can we find a force on a wire? Suppose this is a magnetic field, B equals to, सम बनाते हैं थोड़ा, B equals to say 2 Tesla। That means the magnetic field is like this, like this। Okay, now suppose a wire is placed along this, through which a current of 2 ampere is passing, and the length of the wire 5 meter, बहुत लंबा वायर, 5 meter। Then question 1, what would be the force acting on this wire? तो इसमें क्या करना है? फोर्स F का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बनाओ लिखते रहो मेरे साथ साथ, BIL sin थीटा। सोच के देखो, तार रखा हुआ है along which axis? X axis, क्योंकि ये वेक्टर L होगा ना,
लेंथ के डायरेक्शन में वेक्टर एल हो गया. सो करंट इज पासिंग, दैट इज द लेंथ ऑफ द वायर इज इन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. भाई नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, अंदर का तरफ हो चाहे बाहर का तरफ है तो जेड एक्सिस ये एक्स एक्सिस, दोनों एक्सिस ये दोनों लेके बैठा है. अब फोर्स की बारी है, कौन सा एक्सिस बचा उसके लिए. एक्स एक्सिस वायर, magnetic field negative z axis. So we can easily understand that the angle between this negative x axis and negative z axis is nothing but 90 degree. एक जा रहा इधर, एक है इधर, तो एंगल कितना हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया. That means we will not write sin theta. Sin theta is 1 now. So let us put the values. B 2 टेस्ला, ऐसा यूनिट है क्या, चेक कर लेना. हाँ है. करंट I 2 एम्पियर, ऐसा ही तो होगा ये. Current 2 ampere and then comes length of the wire 5 meter SI unit. Okay, so this would be the force. अरे अच्छा खासा फोर्स हो गया, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तार का ऊपर. This wire, the force acting on it is 20 Newton. This is part 1. Part 2 is which is the direction of this force. The direction of the force can be obtained by, या तो क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो, देख लेते हैं. चलो क्रॉस प्रोडक्ट करके. दिस इज वेक्टर एल, 4 फिंगर रख दिए. अब क्रॉस बी, बी तो अंदर का तरफ है, याद आ रहा है लास्ट क्लास में ये दिखाए थे. ये रहा बी और ये रहा एल वेक्टर. ये मेरा हाथ देखो, इधर है एल वेक्टर, तो एल क्रॉस बी था ना. सो एल वेक्टर में 4 फिंगर बैठेंगे और बी का तरफ मोड़ेंगे, तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि ये एल क्रॉस बी अगर करेंगे, थंब कम्स डाउनवर्ड्स. चेक करके देखते हैं तो मैच करता है कि नहीं. दैट मींस फोर्स ऑन दिस वायर would be along negative y axis. चेक करके देखते हैं तो एक बार. चलो तो इससे चेक कर लेते हैं. किससे, FBI. कॉल मत करना FBI को, सिर्फ देख लो. तो FBI ये हो गया. देखो फर्स्ट थिंग किसको पॉइंट करेंगे पहले. तो फर्स्ट इसको पॉइंट किए, मैग्नेटिक फील्ड, फिर करंट इधर की उधर, उधर हो गया करंट, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट दैट डायरेक्शन. थंब किधर होगा, अरे मैच कर गया, मैच कर गया, थंब नीचे हो रहा है. That means force on this would be along downward direction. एक बताना भाई कौन सा आइडिया इजी लगा, क्रॉस प्रोडक्ट की ये लेफ्ट हैंड थंब रूल, बताना which idea is helpful for you. So I can also get to know about you which one is more helpful for you. So this is the force acting on this wire when placed in a magnetic field F. चलो एक पार्ट तो ये सीख लिए कि फोर्स ऑन अ वायर F होता है. नेक्स्ट पार्ट में ये सीखेंगे कि व्हाट इफ, बदमाशी बुद्धि दिमाग में आ रहा है, भाई ऐसा कर लो तार को बेंड कर दिया ऐसे ऐसे. ये बदमाशी बुद्धि कहां से हो गया, ये तो नॉर्मल बुद्धि है. नॉर्मल नहीं, देखो ना. नाउ वी हैव गॉट अ वायर व्हिच सेंड्स अ करंट. चलो करंट भेज देते हैं I. नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज कमिंग टू योर माइंड. भाई करंट ही घूमता गया तो कहां से करंट आ रहा है, बैटरी कहां है. ओके, वी विल गो टू दैट लेटर. अभी फिलहाल सोच लो. बाय एनी मींस वी हैव मेड करंट I फ्लोइंग थ्रू दिस से A C D E. ABCD मत लेना क्योंकि B माने यहां पे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. सो ACD बोल के कॉइल है, ये कॉइल को रख दिए कहां पे, ये कॉइल को रख दिए N पोल और S पोल का बीच में, रख दिए कॉइल को N पोल और S पोल का बीच में. Wouldn't there be a magnetic field acting from N pole to S pole? Yes, obviously. This is the magnetic field acting along this direction. Okay, now let us consider these things. अच्छा, तार को ऐसे नाम दे देता हूं. ये तार का सेगमेंट 1 है, ये तार का सेगमेंट 2 है, ये तार का सेगमेंट 3 है, and this lowest segment is 4. अब ये बता दो what would be the force acting on the first wire. फर्स्ट वायर फोर्स कितना होगा, बिल साइन थीटा. बी का वैल्यू, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज बी इज ऑलवेज बी एट एवरी पॉइंट. आई तो आई है. इफ वी एज्यूम दैट दिस ए सी डी ई, ये जो है ना ए सी डी, ये एक स्क्वायर है. ए सी डी ई इज अ स्क्वायर and of each side, suppose L ले लो ना, L,
ईच साइड L, ACD इज द स्क्वायर ऑफ ईच साइड L। तो बताओ इसका लेंथ कितना होगा? फास्ट वायर का बात करें, F1 मतलब फोर्स ऑन द फास्ट वायर, इसका लेंथ कितना होगा? L ही होगा। So it is BIL only, sin थीटा 90 डिग्री। क्यों? तार है y एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस में, एंगल तो 90 डिग्री है, तो ओनली BIL। Now comes the direction of this force. So if you have told me, let me see your remarks. Yes, I knew this. I knew this. सब कोई लिखे हो लेफ्ट हैंड थंब रूल, वेरी गुड, आई न्यू दिस, यही आंसर आना था। चलो लगाते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल। पहले किसको लगाएंगे? फर्स्ट किसको पॉइंट करेंगे? भाई ये आ गया ना पॉइंटिंग फिंगर, कैसे? ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। लुक एट दिस एई पार्ट ओनली, हाँ बाकी तारों को छोड़ दो। लुक एट ओनली ऑन द सेगमेंट 1। सेगमेंट 1 में दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। करंट डाउनवर्ड्स की अपवर्ड्स? अपवर्ड्स। थंब किधर होगा? थंब इनवर्ड हो रहा है। फिर से दिखा रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, थंब, ये हो गया तीनों, ये ऐसा पकड़े हैं। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, थंब, इनवर्ड हो रहा है थंब। दैट मींस इसका ऊपर में अगर ऐसा कर दिया, और इनवर्ड माने वी नो इट वेरी वेल दैट इट वुड बी क्रॉस, और इसका साइड में अगर मैं लिख दिया F1 तो वियर्ड। ओके, दैट मींस इस तार का ऊपर फोर्स होगा इनवर्ड, अंदर का तरफ। सो अगर इसका साइड में मैं लिख दिया क्रॉस, इनवर्ड। ओके, सिमिलरली अगर इसको क्रॉस लिख दिए, सिमिलरली सोच के देखो, फोर्स ऑन द थर्ड सेगमेंट वो कितना होगा? थर्ड सेगमेंट माने दिस सेगमेंट। भाई लेंथ तो सेम ही है, मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है, करंट भी सेम ही है। BIL। डायरेक्शन किधर होगा? भाई करंट उल्टा हो गया, किसी एक का अगर डायरेक्शन उल्टा कर देंगे आउट ऑफ दिस तो वो उल्टा ही हो जाएगा। दैट मींस ये अगर क्रॉस है तो ये हो जाएगा डॉट। बोलने में बहुत आसान होता है, हा? चलो करके देखते हैं, कोई बात नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड, पहले किसको पॉइंट करना है बोले थे? मैग्नेटिक फील्ड। करंट अप ना डाउन? दिखाई दे रहा है डाउन है, तो थंब किधर होगा? ये होगा ना, ये होगा ना थंब का डायरेक्शन। दैट मींस करंट, मैग्नेटिक फील्ड, थंब। थंब तो इसका दिखा रहा है कि ऐसे है, ऐसे मतलब डॉट होगा ना, तो इसका ऊपर फोर्स होगा डॉट, और फोर्स का वैल्यू सेम ही होगा, सिर्फ नाम अलग दे रहे हैं। एज इट इज ऑन द थर्ड सेगमेंट, लेट अस राइट इट F3। व्हाट अबाउट F2, F4? क्या ये जीरो होगा? क्या ये जीरो हो जाएगा? अरे जब जीरो होगा, लिख दिया हूं, जब जीरो होगा तब तो होना चाहिए भाई। मैं अगर तुम्हारा जगह होता वही सोचता, भाई लिख दिया है सर, जीरो होगा तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि these segments 2 and 4, these are parallel to this magnetic field। देखो, और यहां पे किए थे ना, यहां पे देखो, ये तार मैग्नेटिक फील्ड का साथ पैरेलल हो गया था, और इसके लिए थीटा 0 डिग्री, तो उसका ऊपर कितना फोर्स हुआ था? नो फोर्स। दैट मींस द पैरेलल वायर्स ऑफ दिस स्क्वायर which are parallel to the magnetic field will experience no force, whatever be the direction of current, doesn't matter. So ये दोनों के ऊपर तो फोर्स हुआ नहीं। अब ये दोनों के ऊपर फोर्स कैसा हुआ? ऐसे देखते हैं, सोच के ऐसे देखते हैं कि मान लो ये एक कॉइल है, मान लो, तो इसका ऊपर इस साइड में फोर्स जो है ना, इस साइड में ये क्रॉस है, अंदर का तरफ है, ये इसका ऊपर फोर्स, तो इसका ऊपर फोर्स है अंदर का तरफ, और इसका ऊपर फोर्स है बाहर का तरफ। तो मैं इसको अगर अंदर का तरफ एक फोर्स दूंगा और बाहर का तरफ दूंगा, will not there be a moment acting on this which will create a torque? इसका ऊपर अंदर, उसका ऊपर बाहर, तो इसका टॉर्क ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ऐसा फोर्स दे रहा हूं इसका ऊपर अंदर एंड आउटवर्ड ऑन द अदर एंड, so they will create a torque to rotate this coil like this। ये कॉइल पूरा ऐसे घूम जाएगा। मैं फैन का बात किया था थोड़ा देर पहले, यही हो रहा है। अब एक तार का कॉइल है, इसमें जितना टॉर्क एक्ट करेगा, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, 2000 बार अगर इसको घुमा दोगे, सो देयर विल बी 2000 टाइम्स ऑफ इफेक्ट व्हिच विल क्रिएट अ मैसिव टॉर्क।
enough to rotate your fan. So ये कितना मैं ऐसे भाई थोड़ा देख तो लूं, कैलकुलेट करके कितना होगा, इसी पेज में कर लेते हैं। तो इसी पेज में हम लोग लेट अस कैलकुलेट दिस वैल्यू, हाउ मच वुड बी द टॉर्क. So let us find the formula for torque, tau. We know that torque is given by any one force constituting the couple into their perpendicular distance. So any one force constituting the couple is, भाई दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, दोनों ही तो BIL है. So this is the force into their perpendicular distance. अब अगर ये स्क्वायर ना होता तो क्या होता? ये स्क्वायर है, वी कैन इजीली राइट L. बट अगर ये ऐसा होता कि ये लेंथ तो L है और ये है विड्थ B, फिर ये है L, फिर ये विड्थ B. अगर ऐसा होता तो क्या करते? तो क्या करते? दिस इज द फोर्स एंड दीज आर द टू फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल, एक अंदर का तरफ एक बाहर का तरफ. तो ये दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होता ना विड्थ ऑफ दिस स्क्वायर लूप. विड्थ कितना है? B ले रहा हूं. बाकी इफ इट इज अ स्क्वायर तब तो B और L इक्वली होगा. सो व्हाट एवर बी द आइडिया, कैलकुलेशन कुछ भी कर लो, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? ना L रहेगा ना B रहेगी, चिंता मत करो. क्यों? क्योंकि B I इतना तक ठीक है. अब बताओ इसका लेंथ तो L था एंड इफ द विड्थ इज B, so what would be the product L into B? Length into breadth, area. So this is the formula of the torque acting on a coil. तुम लोग सोच रहे हो कि यार ये तो B नहीं था, ये तो L था. कोई बात नहीं, L into L, L square, that is again the area of this coil. So whatever remains finally is the area. Whether you take it a square or take it as a rectangle, doesn't matter. So torque on this loop is given by BIA. And if this thing happens, मान लो कि ये तार को मैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे अगर बार बार करता गया, and if I make them like this, and if I send a current by a battery, then ऐसा ही तो एक एक तार का, जो मान लो ये तार था, क्या नाम था? AE. इसी का तो बहुत सारे दोस्त आ गए ना यहाँ पे कितना दिख रहा है? 4. तो मान लो 4000 है. सो एक तार अगर घूम के आ गया, उसका एरिया होगा A. इफ देयर आर कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स, कितना टर्न्स? कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स. मान लो 5000 टर्न्स, सो कैपिटल N वुड बी 5000. तो अगर एक बार घुमाने से एरिया A बनता है, तो N टर्न्स देने से इसका इफेक्टिव एरिया विल बिकम N into A. दिस वुड बी द इफेक्टिव एरिया, N टर्न्स देने से. देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस कॉइल वुड बी गिवन बाय, भाई एक तार के लिए बिया हुआ था ना, बिया मतलब BIA, दिस मच. अरे कोई टर्म होना चाहिए ना टू रिमेम्बर देम, अदरवाइज यू विल फॉरगेट देम. सो एक तार, एक टर्न के लिए बिया, N टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा? N बिया. Otherwise the idea is for each turn it describes an area A. So for N turns it will describe a total area N times A. So area becomes N times, मतलब torque becomes N times. मजाक इसलिए कर रहा हूं, it will help you remember this. So torque acting on a coil is given by NBIA. ये टॉर्क क्या करेगा? इट विल डिफ्लेक्ट this coil. So this torque is called deflecting torque. This is deflecting torque. इतना टॉर्क एक्ट कर जाएगा ऑन अ कॉइल. तो इतना टॉर्क अगर एक्ट किया तो इसको काम में लगा देते हैं. कैसे काम में लगाएंगे? काम में ऐसे लगाते हैं कि we will make a galvanometer with this. So heading दो, कैसा गैल्वेनोमीटर? नाम बड़ा अजीब है,
आर्सन वाल्व, क्या वाल्व? आर्सन वाल्व, डी आर्सन वाल्व गैल्वेनोमीटर। ये डी आर्सन वाल्व गैल्वेनोमीटर में कौन घूमेगा, विच विल रोटेट। यहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो लिखा था, तो ये कॉइल का ऊपर अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया, जिसमें मैं दिखाया था कि ये कॉइल का ये साइड अंदर जा रहा था, अदर एंड वाज कमिंग आउट, तो ये तो ऐसे घूम रहा था। दैट मींस इफ वी, मैं लास्ट पेज में दिखा रहा हूं, दैट मींस ये अगर इसका एक्सिस हुआ तो इसका ऊपर जो टॉर्क आ रहा है, ये साइड ऊपर, ये साइड अंदर, तो इट विल start rotating in this manner, ऐसे ऐसे ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इसी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एप्लीकेशन कहां होता है? यहां पे। सो वी विल कॉल दिस गैल्वेनोमीटर टू बी मूविंग। कौन मूव कर रहा था? मैग्नेट मूव कर रहा था कि कॉइल मूव कर रहा था? ऑब्वियसली कॉइल। सो दिस इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर as well as de-arson well galvanometer। भाई ये ज्यादा पॉपुलर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसका प्रिंसिपल क्या है? अच्छा बताओ तो क्या प्रिंसिपल होना चाहिए? इफेक्ट ऑफ करंट ऑन मैग्नेट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट ऑन करंट। मैं तुम लोगों को बोला था जिसका नाम से पहले ऑन आता है वो डिफ्लेक्ट करता है। तो यहां पे कौन डिफ्लेक्ट कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है कॉइल, मूविंग कॉइल। तो कॉइल मींस कंडक्टर, कंडक्टर मींस करंट, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट डिफ्लेक्ट कर रहा है और मैग्नेट बैठ के मजा ले रहा है। दैट मींस मैग्नेट्स आर फिक्स्ड, हेवी। सो इफेक्ट ऑफ मैग्नेट ऑन दैट coil, that means that conductor, that means that current. So the principle is effect of, लिखो, effect of magnet, effect of magnet on माने जो रोटेट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, मूव करेगा, on current। So this is effect of magnet on current. These are the points about this galvanometer. Now let us draw the galvanometer. galvanometer को कैसे ड्रॉ करते हैं? galvanometer मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, सिर्फ देखो मत, इसको ड्रॉ करो। galvanometer कैसे ड्रॉ करेंगे? ऊपर में we draw this thing, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टॉर्शन हेड। ये देखने में कैसा है? देखने में टी जैसा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टॉर्शन हेड। बाकी टॉर्शन का माने अलग होता है, टॉर्शन मींस ट्विस्टिंग, तो टॉर्शन हेड होता है। ये जो टॉर्शन हेड हुआ, इससे एक तार हैंग करता है। पूरा तार ड्रॉ मत करो, क्यों? क्योंकि बीच में ना ऐसे कर देंगे। क्यों भाई ऐसे क्यों किए? क्योंकि बीच में एक आईना लगेगा, देयर वुड बी अ मिरर अटैच्ड टू दिस। क्यों? एक्सपेरिमेंट करते करते चेहरा देखना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, बाकी विल टेक हेल्प ऑफ दिस मिरर। सो ये जो तार हुआ, ये तार होता है फॉस्फोर ब्रोंज का, कभी कभी एमसीक्यू में मिलेगा। दिस वायर इज मेड अप ऑफ फॉस्फोर ब्रोंज। अब ये फॉस्फोर ब्रोंज का तार लेके क्या करेंगे? आईना लगा के क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए ये तार को कॉइल बना देंगे ऐसे, ज्यादा नहीं, 2-3 टर्न्स दिखा दो, हो जाएगा। ये एक हुआ, ये 2 हुआ, बस एक तार को दूसरा तार का साथ टच मत करियो, ये तीसरा हो गया। 2-3 तार टर्न दे दिए, खुश हो गया ये। अब क्या करेंगे? बिना नीचे वाला तारों का साथ टच करके इसको ऊपर से नीचे लाओ। हाउ? जस्ट मेक अ हम्प हियर एंड मेक इट बैक। एक हम्प बना के नीचे लेके आओ, एंड देन कुछ नहीं, इसका साथ एक स्प्रिंग लगा दो जो कि ऐसा टाइप का है। मैं स्प्रिंग क्यों? क्योंकि ये रोटेट करेगा तो जर्किंग होगा, तो इट विल एब्सॉर्ब दैट एनर्जी। सो ये जो स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग का एक एंड से ऐसा एक तार लाओ, उसको ऊपर उठाओ, और ये टॉर्शन हेड से भी एक तार लाओ, ऐसे ये तार को ऐसे लाओ। फिर ये तारों को जोड़ के क्या करेंगे? फिर
जोड़ेंगे नहीं. One wire will be connected to a screw called S1 and the other wire will be connected to another screw called S2. Now if you connect a source of EMF, a simple battery, to these wires, to these points or screws S1, S2, current will start flowing through this system. और यही तार continues like this. Actually बीच में मिरर है, इसका माने ये नहीं कि the wire is disconnected. Actually मिरर सामने है, वायर दिख नहीं रहा, पीछे से है. That means this is a single circuit. ये सर्किट से करंट होके ऐसे निकलेगा. और सोच लो, as soon as the current passes through this, भाई कुछ नहीं होगा. माने मतलब we have not placed any magnets. ये मैग्नेट्स ऐसे ड्रॉ नहीं करते. Why? जो नहीं होता वो पहले बोल देता हूं. एक बात ऐसा कि मैं वही करके फिर बोलता हूं कि ये नहीं होगा. ये कैसा बात होगी? ये ऐसा बात होगी. या इट विल हेल्प यू रिमेंबर दिस. स्ट्रेट मैग्नेट नहीं होता है. कैसा मैग्नेट होता है? ऐसे. ये किस टाइप का मैग्नेट है? मैं चाहता तो इसको पहले से ड्रॉ करके रखता, बहुत अच्छा दिखने में होता, तो स्टूडेंट का क्या लाभ होता? वो तो बुक में भी है अच्छा दिखने वाला पिक्चर्स. मेरे साथ साथ ड्रॉ करो. यू विल लर्न हाउ टू ड्रॉ. हाँ, मेरा उतना अच्छा नहीं हो रहा पिक्चर, पर ये अच्छा होने के लिए मार्क्स नहीं मिलेगा. मार्क्स मिलेगा लॉजिकली करेक्ट होने. These are what? कागज है क्या फोल्ड करके रख दिया ऐसे? No, these are magnets. My goodness, these are magnets. Yeah, these are magnets. They are given this shape so that the magnetic field lines कहां से निकलता है? S pole. कहां पे जाता है? S pole. सॉरी, कहां से निकलता है? N pole. और कहां पे जाता है? S pole. तो N pole से निकल के सारे फील्ड लाइंस कन्वर्ज करेगा कहां पे? At this position. लाभ, मैग्नेटिक फील्ड बिकम स्ट्रॉन्गर. सोच के देखो, यू नो दिस वेरी वेल. इफ आई ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दिस, ये एन पोल से निकला है ऐसे. So if they converge here, you know very well that where the spacing between the field lines becomes narrower, the magnetic field is stronger. You know that. यहां पे. So उसलिए हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, curve, so that all the field lines converge at the place where the coil is placed, so that the coil is subjected to a strong magnetic field. Second thing, मेरे बाद में जाएंगे second thing. पहले first thing ठीक से सीखते हैं. कैसे? The construction मोटा मोटी over. यही है construction. Now it will happen if you switch this on. After connecting it to a source of EMF, current starts flowing through this. The coil gets deflected by the deflected torque amounting to I cannot hear you. खुद ही बोलो अपने आप को. NBR बोला था. NBR torque का फॉर्मूला याद करो. NBR, yes, that would be the deflecting torque acting on this. Tau deflecting के लिए मैं D लिख दिया. ये कितना हुआ? NBR VIA for n number of turns given to this coil. Okay, इतना पार्ट तो समझ में. Now what will happen if I take, suppose anything, हाथ के सामने ये छोड़कर और कुछ है नहीं, तो suppose if I take a towel like this, और ये towel को मैं ऐसे twist करके अगर छोड़ दिया, ऐसे twist करके छोड़ दिया मैं ऐसे, अरे ये तो वापस आ गया. तो if I twist this and leave it, then it will come back to its unchanged unstrained conditions. कौन सा चैप्टर में सीखे थे? Unchanged unstrained conditions, elasticity. Yes, so due to its elastic properties, it will try to come back to its unstrained condition. किधर? opposite में घूम के. So तुम deflect कर दिए थे, there would be another torque acting on it which will tend to move it back to the unstrained condition. अब दोनों में लड़ाई शुरू. ये deflecting torque, ये उसको undeflect करने के लिए, वापस लाने के लिए torque. That is called restoring torque. Remember that SHM में किए थे restoring force, जो restore करता है. Similarly ये restoring torque, जो restore करने की कोशिश करेगा initial stage को. So दोनों में लड़ाई.
बोलो तो इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होता है? क्लास 11 में पढ़े थे। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज, ये लड़ाई होते 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 कभी ये जीत रहा है वो जीत रहा है करते करते there would be such a case where deflecting torque जितना है और जिधर है द रेस्टोरिंग टॉर्क उतना ही होगा और ऑपोजिट में होगा। सो दोनों टॉर्कों का लड़ाई खत्म हुआ। when both are equal equilibrium comes। इक्विलिब्रियम के लिए ये सोच लो, इफ एक टर्म को याद रखना है इसको। कौन सा टर्म लिखो मेरे साथ साथ, इफ restoring torque, if restoring torque पर, अब ये टर्म याद रखना, यूनिट माना 1 रेडियन ऑफ ट्विस्ट। तो ये क्या है, रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट रेडियन ऑफ ट्विस्ट। इसको ले लिए सी, माने बता दे रहा हूं, 1 रेडियन घुमाने के, रेस्टोर करने के लिए टॉर्क को 1 रेडियन अगर टॉर्क रेस्टोर हो गया तो कितना टॉर्क ये देगा, दैट इज सी। दैट मीन्स अगर मुझे 5 रेडियन वापस लाना है घुमा के, इफ आई हैव टू मूव दिस वायर अ कॉइल बाय 5 रेडियन, तो 1 रेडियन वापस लाने के लिए, रेस्टोर करने के लिए टॉर्क रिक्वायर्ड सी। 5 रेडियन रेस्टोर करने के लिए टॉर्क रिक्वायर्ड सी इंटू 5। और थीटा रेडियन अगर रेस्टोर करना है, घुमा के वापस लाना है, मतलब घुमा के वापस नहीं लाना, इसका माने समझो। इफ यू रोटेट अ बॉडी फ्रॉम ओरिजिनल अनस्ट्रेन्ड कंडीशन बाय थीटा रेडियन, उसको गुस्सा आ जाएगा, किसको, इलास्टिसिटी। तो वो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क जस्ट टू ब्रिंग इट बैक टू द अनस्ट्रेन्ड कंडीशन। तो उसका वैल्यू कितना होगा, वही वैल्यू का बात कर रहा हूं। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, शेप, साइज, यंग्स मॉड्यूलस, दीज क्वांटिटीज। तो उसका ऊपर विचार करके डिटेल्स में ना जाके 1 रेडियन ट्विस्ट अगर कर दिए, उसको गुस्सा कितना आया, सी गुस्सा आ गया, इट गेट्स एंग्री बाय सी। दैट मींस व्हाट, restoring torque is C. So for theta radian twist, restoring torque would be C into theta. So torque restoring, that's why I have written here R, restoring तो वहां पे लिख दिया हूं। So restoring torque is given by C capital into theta। 1 रेडियन के लिए C, थीटा रेडियन के लिए C थीटा। अगर ये थीटा घूम के भाई शांति आता है तो वैसे रह जा भाई, थीटा एंगल घूम के रह जा, शांति तो होगा, हाँ होगा। कैसे, शांति मतलब इक्विलिब्रियम। सो इन इक्विलिब्रियम वी कैन राइट इट लाइक दिस, इन इक्विलिब्रियम, मैं सिर्फ EQ लिख रहा हूं। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बिकम इक्वल टू द रेस्टोरिंग टॉर्क, एंड इन दिस कंडीशन NBR will be equal to C theta। हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए ये, क्यों, नाम क्या था इसका, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स करंट चाहिए I। सो I is given by, from this, C एक कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स है ये कॉइल का, B मैग्नेटिक फील्ड है N पोल टू S पोल, ए एरिया ऑफ ईच टर्न का कॉइल का एरिया है। ये कांस्टेंट टर्म्स है, इसको अलग से लिख दिया, साइड में कौन आ गया, थीटा। सो दिस इज इट। देख रहे हो, लिखने वाला लाइन 2, ये एक, ये फिर उससे दोनों को इक्वल करके आई निकाल दिया, खत्म थ्योरी। बाकी मे बी, आई एम नॉट सेइंग मस्ट, बट मे बी यू नीड टू ड्रॉ दिस पिक्चर इन द एग्जाम। एंड द अदर पॉइंट्स ये ऊपर में लिखा हुआ है, देखो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, डी आर्सोनवाल गैल्वेनोमीटर। सिर्फ एक चीज है, मिरर का काम क्या है, अभी तक समझ में नहीं आया, आईना क्यों लगा दिया भाई, आज तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आईना लगा हुआ नहीं था। उसके लिए यू शुड रिमेंबर दिस थिंग,
if this is a mirror and if this is a ray of light say coming from a source, मान लो कि ये टॉर्च है, टॉर्च से लाइट जलाए, ये लाइट गिरा इसके ऊपर एंड देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, सीधा निकल जाएगा। कैसे? ऐसा। क्यों? ये परपेंडिकुलरली गिरा। ओ, परपेंडिकुलरली गिरने से सीधा निकल जाता है? हाँ, निकल जाता है, बिकॉज यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ ऑप्टिक्स नाउ। थोड़ा देर बाद तो ये सीधा निकल गया। अब क्या किया ना, ये आईना को we rotate this mirror by an angle theta. We rotate this mirror by an angle theta as, बस जैसे आईना को थीटा एंगल घुमा दिए तो क्या हुआ, तो ये होगा दिस रिफ्लेक्टेड रे, इसको मैं कैपिटल आर लिख रहा हूं, रिफ्लेक्टेड रे। दिस रिफ्लेक्टेड रे विल नाउ टर्न बाय एन एंगल टू थीटा। ऑप्टिक्स का एक बेसिक आइडिया है ये ऑप्टिक्स का, कि मान लो इधर से सनलाइट आ रहा है, सनलाइट नाउ इफ यू रोटेट द मिरर बाय थीटा ऊपर की तरफ, तो रिफ्लेक्टेड रे पहले सीधा ही निकल जा रहा था, अब रिफ्लेक्टेड रे ना सीधा ना निकल के ये ऊपर जाएगा ऐसे। सो रिफ्लेक्टेड रे कितना टर्न करेगी, बाय रोटेटिंग द मिरर डबल द एंगल द मिरर इज रोटेटेड, दैट इज मिरर का रोटेशन अगर थीटा है तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर जाएगा, 2 थीटा। समझेंगे कैसे? बोलने वाला बात है क्या, देखने वाला कुछ दिखाई देगा ना। हाउ? जस्ट विद दिस सिंपल apparatus। यहां पे मान लो वी हैव प्लेस्ड अ स्केल। ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्केल ड्रॉ करना है ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर एन आइडिया। ये स्केल है, कंसेप्ट को समझ लो। रिफ्लेक्टेड रे यहां से लेके ट्याव 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 यहां तक आ गया। समझ में ऐसे आएगा कि when this reflected ray hits the scale, that spot becomes illuminated, bright दिखेगा वो जगह, तो समझ जाएंगे अच्छा ये जीरो दाग पे आया, जीरो। कौन? रिफ्लेक्टेड रे। अब आईना को थीटा घुमा दिया, अब पता नहीं कितना घुमा है आईना, देख के थोड़ी बता सकते हैं, तो आईना को घुमा दिया कुछ भी एंगल से, सोचो, बट थ्योरी टेल्स अस दैट इट विल रोटेट बाय एन एंगल 2 थीटा। ओके, थ्योरी मान ली, चलो आगे बढ़ते हैं। So now the reflected ray hits somewhere else where the new position will be illuminated. Bright spot अब यहां दिख रहा है स्केल का, so the bright spot has moved from here to here, मान लो from A to C। तो bright spot अगर इतना शिफ्ट कर गया, इस शिफ्टिंग को let us call it small d, okay, small d, and the distance between this mirror and this scale is capital D। ओके, मान लिया भाई, ये स्मॉल डी कैपिटल डी समझ लो ठीक से। आगे चल के इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सब जो करेंगे आगे चल के, पोलराइजेशन, सब में यू विल बी फाइंडिंग वन थिंग, एक्स एक्सिस डिस्टेंस विल बी टेकन कैपिटल डी, वाई एक्सिस डिस्टेंस विल बी टेकन स्मॉल डी। आगे चल के हमेशा करेंगे, यहां पे भी वही ले रहा हूं। लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट कितना नीचे आ गया, स्मॉल डी, और ये दोनों का गैप कितना, कैपिटल डी। समझ रहे हो? तो ये कैपिटल डी माने तो ये कैपिटल डी। सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल को देखो जिसका बॉक्स हो गया है, ये बॉक्स हो गया इसका, तो ये ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। मैं नहीं लिखूंगा, सोच लो पहले, फिर मैं लिखूंगा। And be very careful if you are at home alone, don't practice this, ये बहुत ही easy है। From this find theta, so theta equals to half tan inverse small d by capital D, इसको half tan inverse small d by capital D, this would be the value of theta। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा ऐसे, एक बार लास्ट पेज में चलते हैं। तो ये पेज में यहां पे क्या है, यहां पे C बाई एन बी, मान लिया C ये है, C रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट रेडियन ऑफ ट्विस्ट मान लिया, तो ये वी कैन फाइंड इट इफ वी आर यूजिंग दिस वायर मेड अप ऑफ
भाई तार कौन सा मटेरियल का था, मैं बोला था थोड़ा देर पहले, फॉस्फोर ब्रोंज। उसका सी का वैल्यू आराम से निकल पाए, निकाल लिए सी का वैल्यू। सी इज नोन, नंबर ऑफ टर्न्स वी नो दैट, मैं कॉइल बनाने का टाइम ही जानते थे। मैग्नेटिक फील्ड भी, अगर मैग्नेट्स फिक्स है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। सो सी एन बी, एरिया ऑफ द कॉइल्स, एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड, प्री डिटरमिन्ड वैल्यूज ले सकते हैं और यहां पे बैठा सकते हैं। थीटा का क्या, दिस थीटा का वैल्यू चाहिए तब तो आई मापेंगे। तो होता क्या है कि द अमाउंट इट टर्न्स, इसका साथ ना स्प्रिंग रहता है और इसका पीछे कांटा रहता है, एंड देयर इज अ डायल लाइक दिस, और यहां पे मार्किंग रहता है, फ्रॉम दिस वी फाइंड दैट, अदरवाइज वी कैन फाइंड थीटा फ्रॉम हियर आल्सो। ये टैन, ये बिगड़ा हुआ चेहरा बना के बैठा है, ठीक कर देता है। हाँ अब टैन ठीक लग रहा है। सो थीटा इज दिस मच। इससे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन बोलूं, बहुत पुराना जमाने में जब लॉर्ड क्लाइव जिंदा थे तब का आईआईटी में आया हुआ था। अभी मेंस नीट बोर्ड एग्जाम खास करके उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे, बोला कि ये आईना ऐसे घुमा दिए कि ये ना 25 सेंटीमीटर नीचे आ गया, कौन, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, और एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्केल एंड द मिरर इनिशियली वाज 100 सेंटीमीटर। So what is this angle? Theta equals to half tan inverse. So 25 by 100, that is tan inverse 1 by 4, उसका आधा। देख लेना कितना आता है, but we need not to calculate this. अब tan inverse करके छोड़ देंगे तो भी चलेगा, no problem. There would be 4 options. ये आंसर हो जाएगा इसका, थीटा। Anyway, so ये डी आर्सुनथल गैल्वेनोमीटर को एक बार देख लो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। We would be moving to another interesting part, and that is effect of current on current. Effect of current on current. एक करंट दूसरा करंट को कैसे इफेक्ट डाल सकता है। बिफोर वी डू दिस, मैं थोड़ा साइड में चला जाता हूं। बिफोर वी डू दिस, ये स्क्रीन का बोल रहा हूं, स्क्रीन का साइड स्क्रीन का साइड में चला गया, क्यों, थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर लो। तो सपोज दिस इज अ कैपेसिटर प्लेट, और ये कैपेसिटर प्लेट को प्लस चार्ज दिया हुआ है, कैसे, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। तो इससे कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं छोटा मोटा, ये डिस्टेंस जो भी हो जाए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इधर होगा, प्लस चार्ज के लिए किधर होता है, अवे, और होगा कितना, ई का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कंसीडरिंग दिस टू बी अ थिन शीट, यू रिमेंबर दिस। नाउ अगर इसका सामने वी प्लेस अनदर प्लेट, तो ये प्लेट में कितना चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, माइनस ऑफ क्यू। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है एक पोजीशन में, अब ये प्लेट को छोड़ दो, इसको मत सोचो, अब माइनस चार्ज इज प्लेस्ड एट अ प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस मच। सो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इक्वल्स टू ई क्यू, वी नो दिस फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू ई क्यू। सो ई इज हाउ मच, दिस मच, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड क्यू इज दिस क्यू। So this much would be the force on this negatively charged capacitor plate. So this is the idea of finding force between the two capacitor plates. इसको अगर simplify कर दो, sigma माने क्या है, Q by area, sigma माने Q by area divided by 2 epsilon naught into side में और एक कौन आ गया, Q. So ultimately it becomes equal to, ultimately force between two capacitor plates, Q square 2 epsilon naught A। ये मैं क्यों दिखाया शायद, इसलिए दिखाया तो कैपेसिटेंस वाला थोड़ा सा हो गया। दूसरा, इफेक्ट ऑफ करंट ऑन करंट में भी ऐसे ही करेंगे कुछ, कैसे, ऐसे क्या कर लेंगे नहीं, मैंने करेंगे कैसे, लेट अस कंसीडर
this to be a wire. कैसा वायर? Infinitely long wire, passing current I करंट जा रहा है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर से. सो अरे ये स्ट्रेट कहाँ हुआ है तो टेढ़ा हो गया. अच्छा ठीक है, प्लीज कंसीडर दिस टू बी अ स्ट्रेट वायर एंड प्लीज यू आल्सो ड्रॉ अ स्ट्रेट वायर. सो स्ट्रेट वायर हो गया, इससे करंट आई जा रहा, आई नहीं जा रहा, आई वन जा रहा. आई वन क्यों? क्योंकि करंट ऑन करंट दो करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए. एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर ये है जिससे आई वन करंट जा रहा है. अच्छा सीपीए बोल दो, जस्ट टेल मी दिस थिंग. क्या ये जो करंट आई वन जा रहा है इससे what would be the magnetic field intensity at a distance a from an infinitely long, a plus infinity से minus infinity. So from for an infinitely long wire, what would be the magnetic field at a point which is at a distance a from the wire? You know this formula. B is given by mu naught by 4 pi, and for infinitely long wire it is 2I by a. बट यहां पे I का वैल्यू I1 लिया हुआ है, सो आई एम राइटिंग I1 और ये B को लिख रहा हूं B1. चलो, सो इफ वी सेंड अ करंट I1 थ्रू अ कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय दिस. अब सोचो, जस्ट लाइक दैट कैपेसिटर प्लेट, अब सोचो another wire is placed here, वो भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है. नहीं, अभी नहीं सोचेंगे. क्यों भाई? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखे थे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो लिख दिया, पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के लिए अवे होता था. मैग्नेटिक फील्ड वैसे अवे वाला नहीं होगा. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा वो नहीं लिखा हूं. सो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स है, करंट अपवर्ड्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं शुरू में सीखे थे, राइट हैंड का थंब रूल. ये थंब करंट का डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो रहा है, इनवर्ड यहां पे, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसे क्रॉस, और ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B1. दैट मींस ये जो B1 लिखा हूं मैं, इसको लिख सकता हूं क्रॉस. मेरा यहां पे और जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं, तुम लोग प्लीज इसका साइड में लिख देना जहां पे वैल्यू लिखी. ओके, अदरवाइज मैं पिक्चर में दिखा दिया. क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे. अब ना ये तार को छोड़ दो, यहां पे कोई तार और है नहीं, बस एक मैग्नेटिक फील्ड है कितना B1, और आज जो सीखे हैं उसको अप्लाई करते चलो. B1 मैग्नेटिक फील्ड में अब हम लोग क्या किए, अब तार टेढ़ा हो रहा है, उसलिए एक तार में सीधा वाला लेता हूं. चलो भाई तार आ जा. ये एक तार को रख दिए यहां पे, ये तार को सीधा तार है, सीधा तार रख दिए यहाँ पे ऐसे. बहुत ही भड़कीला टाइप का कलर है, एनीवे डोंट माइंड द कलर. ये तार भी इनफाइनेटली लॉन्ग है, ऊपर नीचे थोड़ा बढ़ा दे, इनफाइनेटली लॉन्ग. अब ये तार को मत सोचो. दिस वायर one has created a magnetic field here that is inward B1 given by this value. अब ये तार को अगर वहां पे रख दोगे तो we know that force acting on a wire, कौन सा वायर, ये तार का नाम क्या दे दिया 2, ये तार का नाम क्या था 1. So force acting on the wire 2 would be given by Bill sin theta, theta फिर से 90 डिग्री, so it would be only Bill. देखो ना, बोलना इजी है, लिखने जा रहा हूं मैं. B तो B1 हो गया, B कितना B1 लिख दिया, B को लिख दिया. I तो इससे करंट ही नहीं जा रहा है, फोर्स कहां से, अच्छा चलो करंट भेज देते हैं, अपवर्ड ही भेज देते हैं, और इसका नाम कुछ अलग दे देते हैं I2. चलो हो गया. बिल लिखने जा रहा हूं B1, I का बदले में क्या लिख दिया I2 इंटू L. अब टें 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 L क्या लिखूं मैं, अब L क्या इंफिनिटी लिख दो इसका, इसका तो इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, बोथ ऑफ देम आर. अब इंफिनिटी बैठा दूंगा, फोर्स तो इंफिनिटी आ जाएगा. सो we will place 1 here and we will always keep this in mind. लिख के रखो इसको, साइड में लिख के जरूर रखो, एग्जाम में ये भूल होता है. विद एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, लास्ट लाइन में भूल हो जाता है. क्यों? This is the force on the second wire F2, okay, but this is the force part
लेंथ को कितना ले लिया, वी आई एल का एल को कितना ले लिया 1 पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। जरूर लिखो इसको। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड वायर पर यूनिट लेंथ। एक एक लेंथ में इतना फोर्स, अब जितना बड़ा होगा तो उतना फोर्स होगा। सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज दिस मच। इतना तो ठीक है। अब वैल्यू पुटिंग करने से कितना आएगा वो भी देखेंगे। उससे पहले ना, एज आई कीप ऑन टेलिंग यू क्लास 12 स्टूडेंट्स, 12 में ना पहले डायरेक्शन सोचना फिर वैल्यू। डायरेक्शन सोचते हैं, चलो ये फोर्स F2 का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, पहले क्या करेंगे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड, एफबीआई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पूरा चैप्टर में सोचना ही नहीं है। एफबीआई फर्स्ट, ये हो गया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, आई आई किधर हो गया अपवर्ड्स, ये दोनों डायरेक्शन दिख रहा है। थंब किधर होगा, थंब तो इसका तरफ हो रहा है। अरे that means force on this yellow wire is towards this wire, इसका तरफ हो रहा है। that means force on this इसका तरफ हो रहा है। इस फोर्स का नाम क्या दूं, फोर्स ऑन द सेकेंड है तो दे दिया हूं F2, उसका साथ और एक नाम डालता हूं 1, इसका क्या माने हो गया फोर्स 21, नहीं, फोर्स ऑन द वायर 2 exerted by 1, F21 किधर हुआ टूवर्ड्स द अदर वायर। सो ये फोर्स 2 को मैं 2-1 लिख दिया, यहाँ फोर्स 2 को 2-1 लिख देता हूं, तुम लोग भी इसको 2-1 लिख, force 2-1. So force 2-1 would be directed towards the other wire. Now let us go with the back. So F21 बस हो गया, यही इसका थ्योरी है। तो फोर्स 2-1 इक्वल्स टू B1, भाई कितना निकाले थे B1, ये जो फॉर्मूला है B0/4π, लिखो मेरे साथ लिखो, B0/4π 2I1 by A। A क्या था, A क्या था दिख रहा है भाई, A is the distance between the two wires. Okay, this is B1 लिख दिए, इसको लिखने जा रहा हूं यहां पे, और ये B1 जो है इसको मैं इरेज करके साइड में करता हूं, क्यों, ये B1 में इसके लिए किया यहां पे। ये तो पिक्चर का पार्ट, अब इसका वैल्यू लिख रहा हूं। चलो B1 का वैल्यू पुट किए, I2 इंटू 1 मतलब पर यूनिट लेंथ, हो गया, यही आंसर है। μ0/4π 2I1 था तो अब 2 हो जाएगा I1 I2 by A। सिंपल है ना, फॉर्मूला तो सिंपल है, याद रखने वाला। फॉर सिंगल वायर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, फॉर 2 वायर्स द फोर्स वुड बी, यही मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ उसका I2 करंट है, इंटू कर देंगे, दैट मींस 2I1 I2 by A, यही फॉर्मूला है। और उसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा, डायरेक्शन ऐसे मिलेगा कि दिस फोर्स जो है ना F21 अगर इधर है, सिमिलरली वन कैन डू द रिवर्स थिंग, I2 करंट जा रहा है, पहले ले लिए फर्स्ट, एंड देन वी फाउंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 एट दिस पोजीशन वेयर दिस वन वायर इज प्लेस्ड, और तब इसका ऊपर F इक्वल्स टू बिल, we will find the direction of force acting on this, then also we will get the same exciting result, that is the force acting on the first wire, that would be F1, थोड़ा स्टाइल से लिखते हैं, F12 force on 1 exerted by 2, वो कितना होगा towards the other wire। can we say that F12 and F21 are attractive forces, that means the wires will attract each other। यही थ्योरी अगर आ गया, सेम थ्योरी, दैट व्हाट वुड बी द फोर्सेस, जबकि एक से तो करंट ऊपर जा रहा है, पर ये इनफाइनाइटली लॉ, देयर इज अनदर वायर जिससे करंट नीचे आ, इसका करंट को I2 बोलेंगे। सिमिलरली ड्रॉ करो, उसको ड्रॉ करो, अभी के लिए तो समझ जाओगे, बट मे नॉट बी द सेम केस आफ्टर 6 months, जबकि सारे एग्जाम्स सर पे होंगे। तो चलो, सो करंट्स
अगर उल्टा कर दिए तो फोर्स भी उल्टा हो जाएगा. सो इफ वी नेम देम लाइक दिस, वन वायर, टू वायर. सो फोर्स ऑन टू वी विल राइट इट एज F2. स्टाइल से लिखेंगे तो F21. दैट वुड बी रिपल्सिव. ये भी इसको ऐसा बोलेगा, तू मेरे को ठेलेगा, चल मैं भी ठेलता हूं तुझे. ये भी ठेलेगा. दैट मीन्स द फोर्स वुड बी force on one exerted by two. ऐसा हो जाएगा. So can we say this? और इसको लिख के रखो मेरे साथ से. टू करंट्स. हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ करंट ऑन करंट. मतलब देयर हैज टू बी टू करंट्स. करंट्स मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर. सो इफ टू करंट्स, नंबर वन, सेम डायरेक्शन, so you can add another thing here, that is two parallel currents. If two parallel currents flow current in same direction, अगर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन में भेजने से the force will be attractive, they will attract each other. And number two, if they send current in different directions, then they will repel each other. Number two, differ opposite direction, opposite. They will repel each other. Same direction में attract, opposite direction में repel. Now, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर का आपस का अट्रैक्शन और रिपल्शन हुआ, बेस्ड ऑन दिस हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इस पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि दिस इज, एक साम बना लेते हैं. चलो, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर. इससे करंट जा रहा है अप से 2 एम्पियर. 2 एम्पियर इनफाइनाइटली लॉन्ग. यहां पे एक और इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है और पैरेलल है. देखो, ये फॉर्मूला एक्ट करने के लिए दिस मस्ट बी द कंडीशन, दे आर पैरेलल. अगर नॉन पैरेलल हुआ थोड़ा सा हायर लेवल होगा, होगा, बनेगा, नो प्रॉब्लम. चलो, इससे करंट जा रहा है नीचे और ये करंट कितना? 3 एम्पियर. ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग. There is another wire which is this one. इससे करंट जा रहा है अपवर्ड्स, लेकिन इससे करंट जा रहा है बहुत ज्यादा, 5 एम्पियर. एंड द डिस्टेंसेस, ये दोनों का डिस्टेंस से 10 सेंटीमीटर और ये दोनों का डिस्टेंस कितना लोगे? स्टूडेंट्स चॉइस. अब मैं तो सुन नहीं पा रहा हूं, कुछ भी ले लेता हूं. चलो ना, कि 15 सेंटीमीटर. ठीक है, ऐसा ले लो. इसका लेंथ ले लो कुछ 20 सेंटीमीटर. This is wire 1, this is wire 2, and this is wire 3. We have to find what? We have to find force on the wire 3. इसका ऊपर फोर्स निकालो. फोर्स ऑन द वायर 3. मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं,
क्योंकि ये लाइव क्लास चल रहा है. इफ यू आर सीइंग दिस लेटर, दोज वुड बी सीइंग दिस लेटर, इसको प्लीज फास्ट फॉरवर्ड कर लेना एंड सी योर आंसर. बट इफ यू आर इन द लाइव क्लास, आई एम गिविंग यू सम टाइम. टाइम को काम में लगाओ एंड try to do this by yourself. Let me see what are your answers. टाइम दे देना. चलो, let us start. इसको ले लेता हूं. चलो 3 मिनट दे. Let me see when I get your answers. And be careful while answering this. Please be careful about the distances and about the units. CGS unit को रखना नहीं है. Yeah, just convert the units as and when required. अच्छा, यहाँ पे to find this answer, please think of the direction of 5 ampere current. Think of it. Time is about to end. आंसर कोई भेजना चाहते हो? I got answer from Sharonna. 1.1 10 to the power minus 5 Newton. Okay, I got the answer. And also write the direction of this force, Sharonna. Also try to write the direction of this force acting. Oh, time is up. चलो करते हैं. Okay, I got it. First, चलो ऐसा बना. The पहले क्या सोचना है? डायरेक्शन, फिर वैल्यू. फर्स्ट, वन वायर, देखो 3 वायर के ऊपर फोर्स निकालने दो. So this wire will experience a force due to 2 wires, 1 and 2. So 3 का ऊपर 1 किधर फोर्स देगा? Attractive. F on 3 exerted by 1. थर्ड तार का ऊपर 1 तार टानेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा. क्यों? बोथ आर सेंडिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन. देख रहे हो एरो को? ओके, डायरेक्शन इसका पता चला. देन व्हाट अबाउट सेकंड वायर? सेकंड वायर भी तो थर्ड वायर को फोर्स देगा, तो डायरेक्शन किधर होगा? सेकंड वायर का नीचे करंट, इसका ऊपर करंट. देखो नीचे करंट, ऊपर करंट, ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल करंट, दे विल रिपेल ईच अदर. अब सेकंड का तो हम लोगों को सोचना नहीं, हम लोगों को सोचना थर्ड का.
तो थर्ड वायर को सेकेंड वायर क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों? दे आर सेंडिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका ऊपर ऑन दिस थर्ड वायर सेकेंड तार भी इसको ठेलेगा इधर। 3 2 फोर्स एक्टिंग ऑन द थर्ड वायर एक्सर्टेड बाय 2 इधर होगा। अच्छा, दैट मींस इसका ऊपर नेट जो फोर्स होगा दोस आर गोइंग टू बी एडेड। बस आइडिया आ गया, फर्स्ट डायरेक्शन में लिया। नाउ एक एक करके ये दोनों फोर्सेस का वैल्यू निकालते हैं, एक एक करके। तो फर्स्ट ये करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग बनाते हैं इसको, फोर्स ऑन थर्ड एक्सर्टेड बाय 1। तो कितना होगा, F31 म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना होता है, 10 टू द -7। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय A। फॉर्मूला ये मिला अभी, यहां पे फॉर्मूला अभी मिला था 2I1 I2 बाय A। ये देखो, दैट वाज द फॉर्मूला। सो लेट अस कम हियर एंड राइट म्यू नॉट बाय 4 पाई हो गया इनटू 2I1 कितना है 2 एम्पियर, I2 कितना है 5 एम्पियर, 2I1 I2 divided by A। A means what? The distance between the two wires कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 का नीचे क्या कर देंगे 100। ये किस लिए, मीटर बना रहे। अभी भी कुछ भूल हो रहा है क्या? Still something is to be done? Yes। मैं क्या ये बोला था, देखो तो एक बार, क्या ये बोला था कि याद रखना, ये नहीं, यहां पे कि this is the formula of force whatever we got पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो ये तार तो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर के लिए फोर्स भी तो उतना टाइम्स हो जाएगा, कितना, जितना इसका लेंथ है। इसका लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, 20 सेंटीमीटर ना रख के उसको मीटर बना दे। तो दिस वुड बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द थर्ड वायर एक्सर्टेड बाय 1। सो ये आ गया 10 टू द पावर -7, ये 2 2 4। अच्छा पहले इसका हिसाब ले लो, एक जीरो कैंसिल हुआ, इसका भी एक जीरो कैंसिल। सो इसका 10 ऊपर जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा, तो इसमें बचेगा सिर्फ 2। सो इनटू 2 2 4 इनटू 2 8 5 8 40। देख लो एक बार, चेक करके। सो 40 Newton, 40 into 10 to the -7 Newton. For same reason, let us find force acting on 3 exerted by 2। वो भी ऐसे लिखेंगे 10 to the power -7, क्यों, म्यू नॉट बाय 4 पाई, देन 2I1 I2, मैं लिख रहा हूं 2I1 मतलब इसका करंट 3 एम्पियर है, I2 इसका करंट 5 एम्पियर है, डिवाइडेड बाय R। R is the distance between these two wires 2 and 3, 15 सेंटीमीटर, उसको 100 से डिवाइड हो गया, इनटू ये तो हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, फॉर्मूला पुट करके जो मिलता है, इनटू जिसका ऊपर ये फोर्स निकालने जा रहा है दैट हैज गॉट अ लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। सो इसको भी फिलहाल हटाता हूं। सो इनटू 20 सेंटीमीटर दैट इज 20 बाय 100। अब पिछला बार भी ये कर सकते थे, अब मैं नोटिस कर रहा हूं, देखो इसका 20 बाय 100 ऊपर, इसका नीचे 15 बाय 100, तो ये दोनों 100 तो कट जाएंगे। So it becomes equal to 10 to the power -7, और ये कितना हो गया कि 5 3s of 15 और ये 3 कैंसिल। That means it is 40 into 10 to the power -7। अरे इसका भी सेम आ गया, इतना न्यूटन।
सेम आ गया 40 10 to the power minus 7 Newton. As both the forces are along the same direction, so the total force F3 is written as F31 plus F32 plus क्यों किया? क्योंकि both are in the same direction. So if you add them, this will come out to be 80 into 10 to the power minus 7 Newton. बाप रे बहुत भारी फोर्स हो गया सिंपल सा 80 into 10 to the power minus 7 Newton. देखो ये कैलकुलेशन करते वक्त मे बी there is some mistake, maybe there is not. So whatever it is, I hope I have been able to help you understand how to, where to put the values and how to think of the numericals. अगर ये सम आ गया, you can easily expect 3 marks for your board exam. अगर competitive exam का बात करें तब तो you know everything, but इसका competitive exam के लिए जब सम बनाएंगे तब we will take these values common so as to avoid this calculation timing in competitive exams, but for board exam it is okay. So up to this we have done these things. आज का क्लास और लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखो तो एक बार ये सर्किट को कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना. ये सर्किट में एक तार लेके आए, बैटरी से करंट, अभी से करंट जाना शुरू कर दिया, उसको मालूम है कि करंट तो जाना ही है भाई, शुरू से स्टार्ट कर दो. बाकी मजा कर रहा हूं. बाकी this wire is connected to say these two clamps. ये दोनों क्लैम्प से दो वायर फिर से नीचे निकला, 2 वायर्स. ये दोनों क्लैम्प कैसा है मैं बोलूं? ये हाथ को देखो, मेरा एल्बो से अगर ये हाथ ऐसे फ्रीली ऑसिलेट कर सकता है, so can this wire. ये वायर ये पॉइंट का रेस्पेक्ट में ऐसे ऐसे हिल सकता है, ऐसे इट कैन मूव और रोटेट लाइक दिस. सेम थिंग हैपेंस फॉर दिस, दैट इज P और Q में ये जो तारे हैं 2 वायर्स हैंगिंग, these 2 wires can move freely. ओके, अब ये बैटरी का जो और एक एंड है नेगेटिव, इससे भी एक तार लेके ऐसे रख दो. असली मजा तो अब है. एक कंटेनर ले ली. नाउ इफ वी पोर सम लिक्विड इनटू दिस कंटेनर, एक लिक्विड है, ये लिक्विड कौन है? मरकरी ले लिए. तो इससे क्या होगा? इफ यू स्विच इट ऑन, स्विच जैसे ऑन कर दिया, करंट जाना शुरू हुआ है. जैसे करंट आ जाएगा, यहां तक तो ठीक ठाक आया, अब दो भाइयों का घर अलग हो गया. दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ दैट करंट विल फ्लो थ्रू दिस एंड अ पार्ट ऑफ दैट करंट विल फ्लो थ्रू दिस. और इससे क्या होगा बोलो तो? आर दीज वायर्स पैरेलल कंडक्टर्स कंडक्टिंग करंट इन सेम डायरेक्शन? यस. सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. सो क्योंकि मर्क्यूरी में मूव करने में कोई दिक्कत नहीं, बट मर्क्यूरी विल कीप द कनेक्शन बिटवीन देम. कैसे? देखो, ये तार का करंट ये तार होके निकल जाएगा थ्रू द मर्क्यूरी, ये तार से करंट ये तार होके निकल जाएगा थ्रू द मर्क्यूरी. सो द सर्किटरी इज कंप्लीट, इट इज नॉट अ ब्रोकन सर्किट. सो जैसे करंट आएगा ये दो भाग होगा, फिर ये तार होके वापस. सो दीज 2 वायर्स सेंडिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, जैसे ही स्विच ऑन करोगे विल अपीयर टू हैव शिफ्टेड टू दिस पोजीशन. मतलब ये तार इधर घूम गया थोड़ा सा और ये तार इधर. इट प्रूव्स दैट आवर थ्योरी इज करेक्ट. सिमिलरली एक और मजेदार ऐसे ही कर सकते हैं कि इसको ना एक बहुत ही पतला स्प्रिंग से जोड़ दिया, वेरी थिन. मतलब इसको कंप्रेस करने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए. A small force can compress this spring, like dot pen spring होता है ना, उससे भी पतला है. Now, if we do this thing, मान लो एक स्विच लगा दिए और इससे फिर से मरकरी में डुबो दिया इसको.
दोनों। सो अगर ऐसा हो गया एंड इफ दिस इज अ कंडक्टर कंटेनर व्हिच इज कंटेनिंग सम मर्क्यूरी, एक साइड छोटा बड़ा हो गया, डोंट माइंड दैट। नाउ इफ यू डिप दिस इन मर्क्यूरी, फिर से करंट विल फ्लो थ्रू मर्क्यूरी फ्रॉम दिस पार्ट टू अदर पार्ट। स्प्रिंग को भी स्प्रिंग मत सोचो, अभी सोचो कंडक्टर है मेटल का बना हुआ, तो तार से तो करंट निकलेगा ना, और वो करंट पास होके यहां से ऐसे आ जाएगा। कब? जबकि स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन कर दिए, अब सोचो क्या होगा, सोचो अब क्या होगा। इफ करंट ऐसे तो आया, ओके, एक एक पार्ट को सोचो, मैं कुछ ही पार्ट्स को दिखा रहा हूं। देखो स्प्रिंग का हिस्सा से ये पार्ट से ऐसे करंट आया, फिर वो घूम के नीचे वाला हिस्सा से ऐसे आएगा, फिर वो घूम के उसका नीचे वाला एलिमेंट से ऐसे आएगा। सो ऑल द करंट्स अगर फ्रंट साइड से देखें तो ऐसे जाएगा, अरे सो मेनी सेगमेंट्स ऑफ वायर, या तो छोटा छोटा हिस्सा लो लो स्प्रिंग का ऊपर से नीचे तक, सारे ऐसे ऐसे एलिमेंट में से सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। सेम डायरेक्शन में करंट जाने से क्या होता है, ये पॉइंट अगर फिक्स है ना, इसका ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड, सेम डायरेक्शन में करंट जाने से क्या होगा कि ऑल दीज एलिमेंट्स ये फिक्स पॉइंट का रेस्पेक्ट में अट्रैक्टेड होकर उठ जाएगा ऊपर ऐसे। और अगर ऐसे उठ गया, मैं साइड में ड्रॉ कर रहा हूं, ये फिक्स पॉइंट का रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूं, ये फिक्स पॉइंट का रेस्पेक्ट में यही स्प्रिंग अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा, मतलब मरकरी छोड़ के उठ गया ये ऊपर। सो नाउ द कनेक्शन इज ब्रोकन, सर्किट ब्रोकन हो गया। क्यों? ये देखो, दिस एंड ऑफ द स्प्रिंग जो करंट को मरकरी तक पहुंचा दिया था, इट सेंड करंट टू द मरकरी दैट लीव्स द मरकरी सरफेस, उसको टाटा करके ऊपर उठ गया। मरकरी दुखी हो गया, कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि मरकरी तो अब ऐसा है, तो ये तो मरकरी छोड़ के उठ गया ऊपर। अब कोई करंट जब नहीं जाएगा, तब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? इफ नो करंट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट, जीरो। अब जीरो करंट जब है, तब मरकरी का ये एलिमेंट देखे, अरे हम में से करंट ही नहीं जा रहा है। अब तो ये अट्रैक्ट करके नहीं रखेगा, बिकॉज अट्रैक्शन विल स्टे एज लॉन्ग एज द करंट passes थ्रू देम, तब ना जाके फोर्स लगेगा, and the wires will attract each other by a force mu naught by 4 pi 2 I1 I2 by R। तो जब I1 I2 ही जीरो हो गया, so no force, तो स्प्रिंग due to its F equals to kx back to original length unstrained condition, और जैसे बैक हुआ it touches mercury again, जैसे मरकरी को टच किया फिर से करंट जाना शुरू, और करंट जाना शुरू तो दे आर अट्रैक्टेड, एंड दे आर अट्रैक्टेड तो फिर से करंट ऑफ। क्यों? द लीव मरकरी सरफेस, और जैसे करंट ऑफ फिर से वापस बैक। तो ये तो ऐसा ऐसा होता रहेगा। दिस इज कॉल्ड रॉजेट्स ऑसिलेटिंग, रॉजेट्स ऑसिलेटिंग स्प्रिंग। This also proves that parallel currents in same direction attract each other. I hope that today's class was interesting, as well as it would be very helpful for you, those who listen to the class and practice with pen copy. It would be very helpful for you. Chalo milte hain next class. Okay. So good night and bye.